All right, so let us start with today's session with resistors. आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में we have started off with this topic resistors. You should know resistance का मतलब होता है, resistance का मतलब ये था that physical quantity which opposes the flow of electrons, मतलब which limits current. The physical quantity which offers resistance, opposition to current, is called as resistance. The devices or components which limit the value of current is called as resistor. देखो resistance और resistor, ये resistor मतलब जो कंपोनेंट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको बोलोगे रजिस्टर. जैसे कंडक्टर मतलब वन हु कैरीज करंट, राइट? तो कंडक्टर इज इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही रजिस्टर इज इंस्ट्रूमेंट. करंट इज फिजिकल क्वांटिटी, वैसे ही रेजिस्टेंस इज फिजिकल क्वांटिटी. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. सो व्हाट यू नो इज resistance measures opposition to flow of current, opposition to the flow of current. Okay, then as you know, a component which offers component या device which offers resistance or opposition to the flow of current, or opposition to the flow of current, is known as resistor. The flow of current is known as resistor. तो as you know, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, रजिस्टर्स, कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप. एक तो वायर वाउंड, दूसरा कार्बन रजिस्टर. तो वायर वाउंड रजिस्टर क्या है, कार्बन रजिस्टर क्या है, डिटेल में हमको देखना नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल रजिस्टर. वन इज वायर वाउंड. वायर वाउंड मतलब उसमें क्या होता है कि यू हैव सम बेस, इस बेस को नॉर्मली कोर बोलते हैं, राइट? एंड देन इसके ऊपर वाइंडिंग होता है. तो देयर इज वाइंडिंग ऑफ वायर, सच आर कॉल्ड एज वायर वाउंड. फिर इसमें अलग अलग टाइप आते हैं, right? Air core, this core, that core. So there are different types of core material जिस पे आपने wire wound किया है. We will not go into detail of this because this is out of scope of the syllabus. हमें syllabus में है नहीं. तो commercially available there are two types of resistors. Commercially available resistors. Commercially available resistors are of two types. Number one, you know, number one is wire wound. Wire wound resistors normally they are bulky, थोड़े heavy होते हैं. इसका एक टाइप हम डिस्कस करेंगे. Rheostat is something which can be treated as wire wound resistor, हम बाद में देखेंगे वो. But they are heavy क्योंकि as you know इसमें कोर होगा, कोर के ऊपर वाइंडिंग होगा, तो they are heavy. Number two, carbon resistors. Carbon resistors. So normally we use carbon resistors. क्यों? क्योंकि carbon resistors कहाँ यूज होते हैं? नंबर वन, जहां पे large value of resistance required हो वहां पे यूज होता है carbon resistor. So high value resistances resistors or high value resistors are normally carbon resistors. Are normally carbon resistors. And you should also know ये जो carbon resistors होते हैं they are compact, small in size, they are cheap. So these resistors are compact and also cheap. So एक तो high value है, compact है and cheap. So now अब imagine कि हमारे पास एक बहुत छोटा रजिस्टर है. So you have a very small resistor.
compact मतलब very small, and if the register is very small, it is difficult for us to write down the value. मान लो ये हाई वैल्यू रजिस्टर है, मान लो ये 56,000 ओहम का रजिस्टर है, तो अगर मुझे, क्योंकि you see there are registers available of all possible values, हो सकता है 45,000, 68,000, 88,000, 1,10,000, 2,10,000. So it is difficult to write here. How do you write? Because it's very small. There is not enough space to write. तो यहाँ पे ये compact होने की वजह से there is less space to write down the value, mark the value. So you bring in a scheme जिसको आप बोलते हो color coding. So वैल्यू बताने के लिए, क्योंकि जगह कम है, तो देन देयर इज अ स्कीम व्हिच इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन. तो दे ब्रॉट अप अ स्कीम जिसमें आप कलर्स के थ्रू बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या है. सो यू नीड टू नो दिस वेरी सिंपल. सिंस कार्बन रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, their value is marked or indicated by color coding. We will learn this color coding today. So then it is something like this. ये जो color coding है ये ऐसा कुछ होता है. So what you have is color coding में there are 4 bands normally. इसको 4 band रजिस्टर भी बोलते हैं. तो इन दिस यू विल सी 4 डिफरेंट कलर्स. हम देखेंगे व्हाट इज अ मार्किंग स्कीम, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट व्हाट वी आर सेइंग. सो सिंस कार्बन रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, their value is marked by color coding. Good. And this color coding is standardized by this color coding is standardized by I told you क्या था नाम उसका, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन. अभी आपको एग्जाम में याद नहीं आया तो डजंट मैटर, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो. EIA. ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस है, इंस्टीट्यूशंस है. You must have seen many such. बहुत सारे हैं. जैसे BCCI is one of the institutes in India which controls cricket. बोर्ड क्या बोलते हैं उसको? बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, something I don't know. Okay, something like that. जैसे you also have International Cricket Council, ICC, right? So similarly you have जैसे we also have Professional Teachers Association, PTA. वैसे they also have some association in which they decide rules. So anyways, if you don't remember, doesn't matter, it's okay. So you just need to know कि there is some color coding which is standardized by, मतलब which is basically finalized by Electronic Industry Association. आपको समझेगा कि क्यों जरूरी है some rules, क्योंकि अभी मैंने अगर कोई कलर यहाँ पे दिया रेड, तो रेड के लिए कौन सा डिजिट यूज करूंगा वो समझेगा आपको. तो वी विल गो अहेड एंड सी व्हाट इज दिस स्कीम. अगर हमारे पास चार कलर्स है तो सो वी कैन हैव 4 कलर्स. उसमें से कलर, देन फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, एंड देन यू हैव multiplier. And of course you have tolerance. So tolerance के लिए जगह छोड़ना रह गया, तो you will do it now, no issues. So you should only know this particular thing. हम tolerance के लिए थोड़ा सा जगह बना लेंगे. So tolerance value. अब put it over somewhere over here, tolerance, doesn't matter. Okay, anyways, तो समझ लेना tolerance. So basically there is a scheme
अब हो सकता है यहाँ पे पहला कलर रेड हो, ग्रीन हो, वॉयलेट हो, वी डोंट नो। तो देयर इज अ स्कीम जो आपको याद रखना पड़ेगा। डू यू नो, हैव यू वेंट थ्रू दिस स्कीम अर्लियर? यस, नो? तो इट इज, हैव यू हर्ड ऑफ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स हमको पता होगा, या फिर कंप्यूटर साइंस जिनका नहीं है, यू नीड टू लर्न नाउ। तो देयर आर मेनी कलर्स, तो कोई भी कलर दे सकते हैं। तो देयर इज सम स्कीम, इट स्टार्ट्स विथ ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक, ब्लैक, then brown, then no, red, then orange, BB Roy yellow, then green या ग्रे, पक्का ग्रीन, 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 then blue, हाँ, violet, gray, white, then gold, silver and no color. Very good. No color. तो ये कलर स्कीम समझने के लिए पहले तो ये याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया ये जो 4 बैंड्स है, इसमें से जो पहले 2 बैंड है, फर्स्ट 2 बैंड्स, दिस फर्स्ट 2 बैंड्स गिव यू डिजिट्स। करना क्या है, क्या करना था हमको हमारे पास कार्बन रजिस्टर है, हमें इस कार्बन रजिस्टर का वैल्यू बताना है, कितना ओहम, राइट? तो जो पहले 3 कलर है, दे गिव यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओहम, और आखिरी जो है गिव यू टॉलरेंस। ओके, देन ऑफ कोर्स या जो पहले 2 कलर होंगे, दे गिव यू फर्स्ट 2 डिजिट्स। तीसरा जो है दे गिव, इट गिव्स यू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब मैंने अभी भी बताया, कार्बन रजिस्टर्स की वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई। वेरी हाई मतलब कितना, थाउजेंड्स एंड 10,000 एंड 100,000। वेल 100,000 क्यों, क्योंकि 1 लाख बोलते नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में चलता है। आउटसाइड इंडिया यू से 100,000। यू नो, दिस इज 1, दिस इज 10, दिस इज 100, this is 1000, this is 10,000, this here we call as 1 lakh, but people outside India call as 100,000, 100,000, 100K. तो basically you should know, अगर ये जो तीसरा बैंड है, it will give you the value of, for example as I told you, अगर मेरे पास 56,000 ओम है, तो इस 56,000 ओम में पहला नंबर आ रहा है पहले कलर से, दूसरा नंबर आ रहा है दूसरे कलर से, ये जो 10 पावर 3 बचा ये आता है तीसरे कलर से, और चौथा जो एकदम कॉर्नर में है वो टॉलरेंस वैल्यू है। टॉलरेंस वैल्यू क्या है हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले याद कैसे रखते हैं। और ऑफ कोर्स एक बार आपने एक कलर का कॉलम भर दिया, देन इट इज सिंपल, देन यू हैव टू स्टार्ट विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे मत जाना, राइट? इसके आगे कुछ नहीं। ओके, then 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Multiplier 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, raised to 4, raised to 5, raised to 6, 7 8 and 9, right? Then multiplier में normally 2 ही कलर यूज होते हैं, या तो नहीं होता है। So you will either have gold or silver or nothing, no color, right? But in some cases you have few more colors for tolerance. तो tolerance थोड़ा सा याद रखना, tolerance के केस में normally only gold and silver are used normally. Nowadays they started using some other colors also, so we will see what are those colors. Then अब इसको याद कैसे रखते हैं, to remember this there is something very funny which is made out of this. You see कैसे याद रहेगा, ब्लैक, ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू. हाउ डू यू रिमेंबर? दे से बी रॉय. ऑफ का ओ साइलेंट है. ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज का एच गायब कर दो. हैज वेरी गुड वाइफ.
and keeps on asking always for gold and silver. So she keeps demanding gold and silver, right? So BB Roy has very good wife. Wife W तक हो गया. Keeps on asking for gold and silver. And never asks what? And never gets. So that is how you remember basically. So that is the idea. बहुत simple scheme है. So this is how you remember. Easy है याद रखना. BB Roy of Great Britain has very good wife. इतना अगर याद रह गया. Keeps on asking for gold and silver, which I never give. So which he never gives. So this is how you remember. So tolerance. This is tolerance. Tolerance मतलब you know what is tolerance? Limit of tolerance, सहन शक्ति, है ना? जैसे I have tolerance limit for you, you have tolerance limit for me. Similarly, tolerance for any resistance मतलब basically होता क्या है? These are carbon resistors. तो carbon resistors are made up of material, of course. Carbon आप उसमें डालते हो, and you want to make, for example, आपको बनाना है 56,000 ओम का resistance. तो जरूरी नहीं कि उसका वैल्यू हमेशा 56,000 होगा. Little less and little more. ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है, क्यों होना चाहिए? Because you know V equal to IR. तो R equal to V by I. अगर आपने एकदम फिक्स वैल्यू रख दी रेजिस्टेंस की, तो करंट की भी एकदम फिक्स वैल्यू होगी. So that is why little bit of window is given. थोड़ा बहुत कम ज्यादा अलाउ करते हैं, so that अगर करंट थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो जो आपका रजिस्टर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए. That is why, क्योंकि you know voltage fluctuations are something very normal here. थोड़ा बहुत वोल्टेज कम ज्यादा होता रहेगा. वोल्टेज कम ज्यादा हुआ तो फिर रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा. So this is what you need to remember. So now some books थोड़ा थोड़ा अलग अलग बुक में कुछ कुछ अलग दिया है. So for example, now here for gold and silver, nowadays they also started using third band multiplier gold and silver. तो वो आता है 10 power minus 1 and 10 power minus 2. Then tolerance. Tolerance is something that you need to see. सिर्फ brown और red they started nowadays using. This is plus minus 1% tolerance, plus minus 2% tolerance. Then gold is plus minus 5% tolerance. This is plus minus 10% tolerance, and no color is plus minus 20% tolerance. Okay, so color coding scheme is very very simple. You have a 4 band color coded resistor, और आपको कलर से बताना है कि कौन इसका वैल्यू क्या होगा रेजिस्टेंस का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, BB Roy of Great Britain has very good wife, keeps on demanding gold and silver and gets nothing. Okay, तो याद रखने के लिए इज इंपॉर्टेंट फॉर यू B, क्योंकि 2 बार B आ गया तो ब्लैक से स्टार्ट करना. तो BB Roy of नहीं लिखना ग्रेट ब्रिटेन, हैज मत लिखना वेरी गुड वाइफ, keeps on demanding gold, silver, gets nothing. So उन्होंने सिर्फ BB Roy of Great Britain तक किया था, ये आगे हमने बना दिया gold, silver and nothing. Okay, so black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, gold and silver, and no color. तो अब कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा, बिकॉज देर आर फ्यू अल्फाबेट्स विच आर रिपीटेड. तो यू सी G and G, ग्रे एंड ग्रीन, तो याद कैसे रखते हैं? ग्रे एंड व्हाइट कम्स टुगेदर. तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ग्रे एंड व्हाइट कम्स टुगेदर. तो ग्रे एंड व्हाइट, बिकॉज डू नॉट गेट कंफ्यूज, ग्रीन एंड ब्लू, राइट. देन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि G 3 बार है, राइट. तो गोल्ड एंड सिल्वर, हाउ डू यू रिमेम्बर? सिंपल. अभी आप जाओगे किसी ज्वेलर के शॉप में तो गोल्ड और सिल्वर ही नहीं जाओगे, तो साथ में आता है, ऐसे समझ लेना. सो गोल्ड एंड सिल्वर विल कम टुगेदर. एंड सिंपल फर्स्ट डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फर्स्ट डिजिट हो गया. वापस से 0 1 2 3 4 5 6
7, 8 and 9. मल्टीप्लायर में सिर्फ 10 रेज टू कर दिया ना, 0, 1, 2, और इन दोनों का टॉलरेंस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और इट इज एक्चुअली सिंपल क्योंकि प्लस माइनस 0 टॉलरेंस है, ये प्लस माइनस 1% प्लस माइनस 2%, देखो 1 तो प्लस माइनस 1, 2 तो प्लस माइनस 2, देन टॉलरेंस खत्म। अब टॉलरेंस सिर्फ आखिरी में आएगा, फिर अब ये आ गया 10 पावर 3, 10 पावर 4, 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9, 10 पावर माइनस 1 एंड 10 पावर माइनस 2। इसका प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20% इज द टॉलरेंस। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, सिंपल। तो अभी एक्सप्लेन भी कर दो, अभी समझ में आ गया तो कैसे लिखोगे। सो इन केस ऑफ 4-band carbon resistor, 4-band carbon coded resistor, first two bands give, what do they give is first two digits, give first two digits. Third band gives multiplier, and then fourth band and last, मतलब fourth band gives tolerance value in percentage, of course. So tolerance is always in percentage. This is what you need to remember. Good. Then अब simple है. Let us take one example from the book. अभी इन्होंने एक example दिया है, yellow, violet, orange, gold. Yellow, violet, orange, gold. Yellow 4, violet 7, orange 10 power 3. तीसरा कलर आपको देता है मल्टीप्लायर 10 पावर 3, मतलब इसकी वैल्यू होगी 47 इंटू 10 पावर 3 ओहम, और गोल्ड प्लस माइनस 10%। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। गोल्ड 10% था ना, 5% था, वेरी गुड। सो इट गिव्स यू प्लस माइनस 5%. सो दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। तो याद रखना कि जो पहले 3 डिजिट है, ओनली those 3 digits are giving you resistance value, आखिरी का जो है it is giving you tolerance। तो याद रखो। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास अगर 330 ओहम ये वैल्यू है, 330 ओहम, तो कलर कोडिंग क्या होगा? इजी, ऑरेंज 0, 10 पावर 1, वेरी गुड, 10 पावर 1 इज ब्राउन, 10 पावर 1 पक्का ना, 10 पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये आएगा ब्राउन, गुड। एंड देन टॉलरेंस, हाँ टॉलरेंस अगर नो कलर तो 20% होता है प्लस माइनस। हाँ तो फिर यहाँ पे कैसे बताओगे? इसका मतलब यहाँ पे टॉलरेंस बैंड इज मिसिंग, सो दिस इज 3-band रजिस्टर, राइट, देयर इज नो टॉलरेंस। या फिर आप बोल सकते हो कि चलो अगर मैंने बोल दिया नो टॉलरेंस बैंड इज मिसिंग, आप बोलोगे नो कलर, नो कलर मतलब बोल दोगे प्लस माइनस 20%। तो एक काम करना, ऐसे केसेस में लिख देना टॉलरेंस बैंड, देयर इज सम टॉलरेंस बैंड व्हिच इज आई डोंट नो व्हाट इट इज, ओके। द मोमेंट यू राइट डाउन, अगर आपने ऐसा बोल दिया कि अरे वहां पे कुछ नहीं मतलब नो कलर मतलब कितना टॉलरेंस? प्लस माइनस 20%। तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सम टॉलरेंस बैंड दैट यू डोंट नो, यस। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बिकॉज इफ आई रिमूव वन बैंड, मैंने अगर यहाँ पे एक बैंड डाल दिया, then there is this second band, then there is this third band, and then I say there is nothing means no color मतलब plus minus 20%।
हमें तो बोला है 330 ओम है, तो 330 ओम का निकालो, तो यू डोंट नो, सम टॉलरेंस बैंड इज देयर, बट सिंपल। तो ऐसा कुछ भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। लेट मी मेक सम जनरल कॉम्बिनेशन फॉर यू, सम जनरल कॉम्बिनेशन। आई विल से ओके, आई हैव वॉयलेट, then I have blue, and then I have red, and then I have silver. So what is the value? Violet, violet 7, blue is 6, red is 10 power 2, 10 power 2, and plus minus 10%. So 7600 plus minus 10%. This is the value of resistance, right? So this is how you can find out values of resistances. Clear? Easy था और interesting भी था. Good. Then now we have to see combination of resistances. So example. तो पहले हम combination of resistors क्या है वो देख लेते हैं. Combination of resistors. और इसका जरूरत क्या है वो समझना जरूरी है, बिकॉज नॉर्मली इन योर बुक्स, कोई भी बुक हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या सम नोट दैट यू आर रेफरिंग, मे बी यू आर रेफरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स, प्रॉब्लम ये है कि कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को आप कंबाइन करोगे, बट द अल्टीमेट क्वेश्चन इज व्हाई टू कंबाइन. ओके, बिफोर वी कंबाइन आपको पता होना चाहिए कि सिंबॉलिकली हाउ डू रिप्रेजेंट रजिस्टर. एनी रजिस्टर सिंबॉलिकली यू रिप्रेजेंट बाय दिस साइन. दिस इज रेजिस्टेंस, राइट? रजिस्टर बेसिकली. तो सिंबॉलिकली यू आर पुटिंग रजिस्टर समथिंग लाइक दिस. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई टू कंबाइन टू रजिस्टर्स. एग्जाम्पल, अगर आपने आपके घर में कोई खराब कैलकुलेटर पड़ा होगा, रिमोट कंट्रोल होगा, उसको निकाल के देखो. You will see a board inside. उस बोर्ड पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं. मतलब there are basically in an electrical network there are various paths. तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बहुत सारे पाथ होते हैं. You may have different paths in electrical network, something like this. अब ऐसा है कि मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर पाथ में से 1 एम्पियर का ही करंट होना चाहिए. ओके, ऐसा हो सकता है कि हमें इस पाथ में से, इलेक्ट्रिकल पाथ में से 1 एम्पियर का करंट चाहिए, लेकिन करंट ज्यादा है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा. रेजिस्टेंस क्या करता है? लिमिट करने का काम करता है. मतलब मुझे यहां पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. नाउ इट इज पॉसिबल दैट कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कम है. ये रेजिस्टेंस जो है ये 0.5 एम्पियर के करंट को ब्लॉक कर सकता है. मतलब कितना पास हो जाएगा? 1.5 एम्पियर. हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? 1 एम्पियर. और मेरे पास ऐसे ही 2 रेजिस्टेंसेस है, लेकिन मेरे पास आई हैव ओनली सेम टाइप ऑफ रेजिस्टर्स अवेलेबल. अगर ज्यादा करंट ब्लॉक करना है तो रजिस्टर का वैल्यू भी ज्यादा चाहिए, इन शॉर्ट. बट आई डोंट हैव, मेरे पास स्टॉक में नहीं है. आई डोंट हैव इट इन स्टॉक. आई हैव दिस रजिस्टर्स एज मेनी एज यू वांट. 100-200 पड़े हैं, बट अदर वैल्यू के नहीं है मेरे पास. हमारा रिक्वायरमेंट क्या था? 1 एम्पियर. एक ने क्या काम किया? 0.5 एम्पियर के करंट को रिस्ट्रिक्ट किया. तो अगर मैं 2 रजिस्टर्स को एक के बाद एक लगा दूं, if I connect these 2 resistors, right, then my purpose is served. मतलब दोनों मिलके इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे कि ओवरऑल 1 एम्पियर करंट ही पास होगा. ओके, यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है. पहले ने 0.5 एम्पियर के रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोका, अगले ने और 0.5. मतलब यू मे एंड अप थिंकिंग कि पहले रेजिस्टेंस में से कितना गया? 1.5. दूसरे से कितना गया? ऐसा नहीं होता है. When you combine 2 resistors together, same current will pass. Yes, because when you connect these 2 resistors, they are behaving like a single resistor, right? Then ऐसा भी हो सकता है that इसको बोलते हैं series combination. So there are 2 types of combination. Series मतलब you see
सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टर्स के, दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक ही पॉइंट कॉमन है, ओनली वन। ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है। सो सच कॉम्बिनेशन is called as series combination. So how do you define series combination? You say when different electrical components, या फिर when two consecutive electrical components have only one point in common, then it is said to be in series. या फिर according to the definition of your book, they say in series combination of resistors they are connected in single electrical path. What do you mean by single electrical path? तो जब भी आप एक सर्किट देखते हो तो ये सर्किट में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जैसे ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2, यू मे हैव दिस एज पाथ नंबर 3। तो सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में जितने भी कनेक्टेड होंगे, यू मे हैव 2, 3, 4, 5, 6, all these are in series. So when you have resistors connected in single electrical path, then all these resistors are said to be in series. या फिर when two resistors have one point in common, you see ये दो पहले दो रेजिस्टेंस में एक ही पॉइंट है कॉमन में, तो पहले दो जो है they are in series. फिर second and third have one point in common, then 2 and 3 are in series. Third and fourth have one point in common, third and fourth are in series. Fourth and fifth have one point in common, then fourth and fifth are in series. And series में जितने भी हो, current is always same through all of them. Good. तो पहले तो आपको ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए that what is a series combination. So when resistors are connected in single electrical path, these resistors are said to be in series. Or when two resistors have only one point in common, then they are said to be in series. Good. Then up what you want to do is, अब आपके बुक में कुछ equations है, we will derive this. So first of all let us note down पहला टाइप का कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा पैरेलल भी है, पैरेलल इज आल्सो सिंपल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हाउ डू यू डिफाइन दिस, कैसे डिफाइन करोगे, when many resistors are connected in a single electrical path, then they are said to be in series. Or you can say when two resistors have a single common electrical point, then these resistors are said to be in series. Simple, right? And interestingly, as I told you, कि जब सीरीज में होता है तो करंट थ्रू ऑल ऑफ देम इज द सेम। जितने भी रेजिस्टेंसेस लगाए आपने, 2, 4, 10, 2000, 20,000, 1,00,000, करंट विल ऑलवेज बी द सेम। सो करंट थ्रू all the resistances in series, the resistances or resistors in series is the same. अब ये चीज अच्छे से सुन लेना what I am saying. ओहम्स लॉ में आपके पास तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज है, V, I and R, राइट? अब अगर मैंने दो रजिस्टर्स लिए, they may or may not have same value. तो एक का R1 एक का R2, और मैंने कनेक्ट कर दिया इसको टू अ बैटरी जो एक पोटेंशियल डिफरेंस
प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यू हैव V, I एंड R, उसमें से रेजिस्टेंस तो सेम नहीं है, करंट सेम है, क्योंकि सीरीज में है तो करंट विल बी द सेम। नाउ द थिंग इज, इफ यू रिमेंबर, और मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि बेसिक्स थोड़ा सा साथ में लेके चलो, कॉन्सेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग। ये तो कोई भी लिख सकता है, डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। रजिस्टर का मतलब क्या? रजिस्टर का मतलब क्या? अ कंपोनेंट विच ऑफर्स अपोजिशन टू करंट। जहां जहां अपोजिशन होता है फिर भी तो करंट फ्लो हो ही रहा है ना, तो जहां जहां पे अपोजिशन होता है वहां वहां पे वर्क डन करना पड़ता है टू सर्कुलेट करंट, राइट। इलेक्ट्रॉन स्टिल आर मूविंग, मतलब करंट इज स्टिल फ्लोइंग, मतलब ये जो अपोजिशन था उसको ओवरकम किया, ओवरकम अपोजिशन को ओवरकम करना मतलब वर्क डन। वर्क डन मतलब एनर्जी। मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले बताया था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी आप लगाते हो, इन रियलिटी व्हाट इट डज इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बैटरी आपने कनेक्ट किया है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहां से आया था? रेजिस्टेंस कहां से आया? यहां तो हमने एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, आप बोलोगे कार्बन रजिस्टर है, फाइन, बट डू यू रिमेंबर वो जो आयन कोर थे, आयन कोर इन अ कंडक्टर दे वर वाइब्रेटिंग, इलेक्ट्रॉन को मूव होना था लेकिन वो आयन कोर वाइब्रेट हो रहे थे एंड इलेक्ट्रॉन्स वर अंडरगोइंग कोलिजन, तो दैट इज रेजिस्टेंस बेसिकली। तो आपको ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंट्रिंसिक हो या आपने बाहर से लगाया, गुड। देन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में एनर्जी स्पेंड होगा, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ओके। तो जब करंट पहले रजिस्टर से फ्लो होने वाला है तो पहला रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोजिशन। मतलब ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया मतलब ये एनर्जी है बेसिकली, राइट। तो पहले रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि जो फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है और पहले रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में 3 वोल्ट यूज हो गया, राइट। सो यू कॉल इट एज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का ड्रॉप कहां कहां होता है? जहां जहां पे रेजिस्टेंस हो। देन यहां पे भी तो ड्रॉप होगा। सो बेसिकली करंट रेजिस्टेंस R1 क्रॉस कर गया और उसको रेजिस्टेंस ओवरकम करने में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट इज V1। सिमिलरली सेकंड के अक्रॉस भी तो ड्रॉप होगा, सेकंड रजिस्टर भी तो अपोज कर रहा था, तो टोटल जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया है इट विल बी V1 प्लस V2, राइट। तीसरा होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3, चौथा होगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, राइट, करेक्ट। अभी बुक में ऐसा कुछ नहीं बोलते, बैटरी जो आपने अप्लाई की पोटेंशियल डिफरेंस इट इज basically V1 plus V2, where V1 is drop of potential at R1 and V2 is drop of potential at R2. That is also correct, but you need to remember कि कहां से आया, because you बैटरी लाना मतलब आपके मोबाइल फोन चार्ज क्यों करते हो बार बार? क्यों करते हो चार्ज? बैटरी क्यों खत्म हुआ बैटरी? Because when you charge it, you are storing electrostatic energy, और आपके फोन को चलाना है तो आपके फोन के अंदर भी ऐसा बोर्ड होता है, चिप। It also has tracks, path also has resistance. So when you circulate current, how does current circulate? By using energy, right? तो करंट फ्लो करने में एनर्जी यूज हो गया तो बैटरी डाउन होगा ना धीरे धीरे, राइट। तो अगर ऐसा नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, मतलब एनर्जी यूज नहीं होता, मतलब एक बार चार्ज करो चलते जाओ, राइट। ऐसा होता है क्या? ऐसा सिर्फ सुपर कंडक्टर में होता है, और वो सुपर कंडक्टर they do not really work at normal temperature like room temperature, they work at very low temperature. वो आपको इंजीनियरिंग में पता लगेगा what are superconductors, right? So I will not go into that, but anyways, तो पता होना चाहिए करंट सर्कुलेट हो रहा है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे where V क्या था? V is applied potential difference, applied potential difference. Then what is V1?
व्हाट इज V1? V1 इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हो इसको, या फिर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हो। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल कहां पे? एट R1, ये V1 है। व्हाट इज V2? ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल एट R2। ओके, इक्वेशन नंबर 1। बट what you know is, but V equal to IR, right? और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रजिस्टर्स इन सीरीज हैव सेम करंट। तो जब मैं यहां लिखूंगा V1, आई विल राइट IR1, नॉट I1 R1। 2, 4, 6, 7, 8 जितने भी हो, जितने भी रेजिस्टेंस इन सीरीज हो, सब में से करंट जाता है सेम। तो V1 इक्वल टू IR1 एंड V2 इक्वल टू IR2, राइट? अब इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल हैव V इक्वल टू V1 विच इज IR1 प्लस IR2, I निकल जाएगा कॉमन, R1 प्लस R2। तो ये जो R1 प्लस R2 है, इसको बोलते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द पाथ, इलेक्ट्रिकल पाथ। मतलब क्या? मतलब मैं इन दोनों को हटा के सिंगल रख सकता हूं, प्रोवाइडेड उस सिंगल की वैल्यू कितनी चाहिए? R1 प्लस R2। तो ये जो R1 प्लस R2 है, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वेयर R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट, या तो इसको बोलते हैं RS, राइट? It is equivalent resistance of the path. It is nothing but equivalent resistance. टोटल मत बोल देना, क्योंकि टोटल बोला तो यहां पे तो ठीक है टोटल, पैरेलल में गड़बड़ हो जाएगी। This is not called as total, this is called as equivalent। और ये सीरीज में था तो आप सीरीज भी बोल सकते हो, equivalent और सीरीज रेजिस्टेंस। Are we good here? Clear? अब मान लो अगर आपके पास n रजिस्टर्स हैं, सो इफ n रजिस्टर्स आर प्रेजेंट, और कौन से n रजिस्टर्स? इफ n रजिस्टर्स, कौन से n? R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 and so on are present in the electrical path, are present in the path। तो इस केस में, ऑफ कोर्स हम सीरीज की बात कर रहे हैं, इस केस में इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। आपको मैंने बताया था जब बहुत सारे नंबर्स का एडिशन हो तो समेशन I runs from 1 to n। अगर 10,000 होंगे तो समेशन I runs from 1 to 10,000, राइट? अगर 100 होंगे तो समेशन I runs from 1 to 100। गुड। अब अगर सारे के सारे सेम वैल्यू के हो गए, सो if R1 equal to R2 equal to R3 equal to Rn equal to R, सारे के सारे सेम वैल्यू हो गए अगर, तो in this case what you will have is R equivalent equal to R plus R कितने बार? n times, तो ये आएगा n into R। याद रखना, ये we are laying the foundation for 12th standard here, ये याद रखना। अगर मेरे पास 100 रजिस्टर्स है, हर एक का वैल्यू है 2, और सीरीज में है 100 into 2, 200, right? Correct? This is something you need to remember because this is the basic thing for 12th। अभी स्टार्टिंग ही हुआ है और मैं अभी तक नेटवर्क ये वर्ड यूज नहीं किया, मैं इलेक्ट्रिकल पाथ बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जब आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएगी, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो यू नीड टू रिमेंबर बेसिक्स। तो जस्ट अ क्विक, वेरी क्विक रिकैप। आइडिया क्या था? आइडिया ये है कि हमको रेजिस्टर्स को कंबाइन करना है। क्यों करना है? आई टोल्ड यू कि मे बी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पाथ है जिसमें 10 ओहम
इतना रेजिस्टेंस चाहिए टू लिमिट द करंट, क्योंकि अगर ज्यादा करंट पास हो गया तो उस इलेक्ट्रिकल पाथ के आगे जो कंपोनेंट लगा होगा वो डैमेज हो जाएगा। मान लो आपके पास एक पाथ है, पाथ के आगे कंपोनेंट है जिसको 1 एम्पियर करंट ही चाहिए, ज्यादा गया तो गया काम से। आप ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं उड़ जाना, उड़ गया, हाँ, तो नॉर्मल लैंग्वेज उसको उड़ जाना बोलते हैं, बट दैट गेट्स डैमेज्ड। तो यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट, और उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मतलब 1 एम्पियर का करंट पास होना चाहिए, बाकी ब्लॉक होना चाहिए, उसके लिए आपको 10 ओम चाहिए। नहीं है हमारे पास 10 ओम, हमारे पास 2 ओम का एक है और 8 ओम का दूसरा है। तो व्हाट यू डू इज पुट दीज टू इन सीरीज, मतलब दोनों का एक एंड कॉमन करके उस जगह पे फिट कर दो, उस पाथ में लगा दो, राइट। इससे क्या होगा, इससे व्हाट विल हैपन इज, बैटरी तो कनेक्टेड है ही नहीं तो करंट आएगा नहीं, तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, मतलब जो एनर्जी आप यूज करने वाले थे टू सर्कुलेट करंट उसमें से थोड़ा ड्रॉप हो गया एट R1 और बाकी का ड्रॉप हुआ एट R2। तो टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 plus V2, where V is applied potential difference, V1 is drop at R1 and V2 is drop at R2. Then what you know is from Ohm's law, V equal to IR. But as I told you, once you connect resistors in series, current through each resistor is the same. ये word याद रखना, current is same कब, when they are in series. पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, हम कल देखेंगे वो। तो इसके लिए V1 is IR1 and V2 is IR2। तो V is V1 plus V2, IR1 plus IR2, I कॉमन R1 plus R2। ये जो R1 plus R2 है इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सीरीज में था इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस RS। अगर हमारे पास N होते तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 so on so forth। क्लियर। तो इक्विवेलेंट आएगा आपके पास समेशन Ri, I रन फ्रॉम 1 to N। अगर ये N के N सेम वैल्यू के हुए, मैंने इसे बताया आपको कि मुझे 10 ओहम टोटल चाहिए था, मेरे पास 2 ओहम के 5 है, राइट। तो R प्लस R मतलब 2 plus 2 plus 2 5 बार। तो अगर N के N सेम वैल्यू के है तो R plus R plus R plus R 10 times तो NR। So total resistance in the circuit in the electrical path is N times of R। So that's it for today।